that okay, what is basically absolute value relationship. Uh, this one is about the number completely. Absolute value means is some positive magnitude of that number, and that's defined like, let's suppose we have any real number or any real number a. You know that what I mean by a real number. The absolute value of a denoted by this symbol, and that absoluteness is defined like that absoluteness is equal to a if the absolute the number is positive or zero. The absoluteness is equal to minus of that number if the number is negative. So there is a property about that absolute definition. You can say let a be a real number and let b be a positive real number. सपोज करते हैं कि एक जो है वो ए रियल नंबर है और दूसरा जो नंबर है बी वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब बी इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर. Then this relationship means if absoluteness of a is less than b, so we can evaluate this relationship accordingly. So we can evaluate, or we can open this bracket by merging these two sides on the positive and negative sides. Why? Because b is positive, and this is only applicable when b is positive. When b is positive. So let's suppose I have a number absolute of a, and let's suppose that number is less than some positive real number. Let's say 3. Then this statement is equivalent to another statement, that is a, that a is greater than -3 and less than 3. तो या तो आप फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस केस में दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, because the absoluteness is less than some positive number. So in that case, these two statements are called equivalent statements. हेलो, आवाज आ रही है? यस Yes, सर, sir. आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. तो मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू है. मैं तो पॉसिबल है कि बीच में कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे. तो उसमें आप लोगों ने बताना है कि भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही. ठीक है सर, आप ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ बेटा, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, दोबारा शेयर करने को. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी आए. अब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी मतलब जिसमें एब्सोल्यूटनेस जो है वो यूज हुई हो, या एब्सोल्यूटनेस से रिलेटेड कोई कंडीशन यूज हुई. तो लेट्स सपोज हम कोई फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी पिक करते हैं और कहते हैं कि लेट्स सॉल्व दिस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन लाइक दिस. इसको यूज करके आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें. तो वी कैन से यहाँ पे जो a है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे जो b है दैट इज 8. तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, हमने यहाँ रेफरेंस दिया कि अगर इस तरह की इनइक्वालिटी है तो हम उसको इक्वलेंटली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं.
So let's suppose A is x square minus 8 and B is equal to 8. So we can say, we can obtain that absoluteness accordingly. X square minus 8 is less than or equal to 8 and greater than or equal to minus 8. So आप क्या करेंगे, यहाँ पे minus 8 आ रहा है, तो you can add 8 to all three parts. Yes, बेटा, who is that? I don't know who is that. मैं बात करता हूँ, एक मिनट. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी सर बात आ जी सर आ रही है। रही है सर आ रही है आवाज। ओके बेटा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मकसद था कि वी फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है, जो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करे. इनइक्वालिटी तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज अ इंटरवल सम इनफाइनाइट सेट. सो वी हैव टू ऐड दिस नंबर on all parts of inequality from the left hand side, central part, and also on the right hand side. So हम इसे सिंपलीफाई होगी इनइक्वालिटी मिल जाएगी. अब इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज द राइट हैंड साइड. अब इसको दोनों पार्ट्स के हिसाब से अगर हम ब्रेक करेंगे, लेट्स सपोज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट मींस कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल. Because we know that the square of all real numbers is positive. So we only have to solve x square is less than or equal to 60. So taking square root, we know that let's suppose square root of x square is basically equal to absolute base of x. So that आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है. जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा माइक के साइड में बात करें. सर आप चैट खोल देना। क्या बोल रहा? चैट ओपन कर देना सर आप। ओपन कर दूं? मैसेज लिखे, चैट में मैसेज लिखे, जो भी आपका इशू है. ओपन है, चैट ओपन है भाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूटनेस ऑफ एक्स. सो इट मींस के यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूटनेस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16. Okay, and that is equal to, you know that is equal to 4, and 4 is a positive number. So we can rewrite the same statement into two parts. X is between 4 and minus 4. So this is the required solution set, means that is a closed interval from minus 4 to 4. So अगर हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज अराइज हो प्रॉब्लम में,
किसी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको with the given definition or explanation of absoluteness हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बेटा एनी क्वेश्चन? No. No, sir. No, sir. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है आपकी कोर्स कंटेंट्स में, दैट इज द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, हम R1 बता दूं मैं आपको कि रियल दैट इज द वन डायमेंशनल स्पेस R1, R2 एंड R3। तो R1 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मींस सिंपली अ सेट ऑफ रियल नंबर। R2 के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन फर्दर R3। So let's suppose, what do you mean by the rectangular coordinate system? This is also called the Cartesian coordinate system because there is the cross product of two same real lines. So that's why there is the Cartesian coordinate system. The method used to represent points in a plane using ordered pairs of real numbers. ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम पॉइंट्स को एक प्लेन में ड्रा करते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर मींस देयर इज सम ऑर्डर बिटवीन पेयर। सो यहाँ पे हम दो एक्सिस स्पेशली यूज कर रहे होते हैं, वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस। इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। और इन दोनों के जो कार्टेशियन है, वहाँ पे एक पॉइंट जो कि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट मानी जाएगी, दैट इज द ओरिजिन, जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस के तौर पे काम करेगी, या ओरिजिन पॉइंट इनिशियल पॉइंट के तौर पे काम करेगी। x-axis means the horizontal movement of particle, let's say, this one is the movement. So the movement along x-axis horizontal parallel to the surface of earth. Suppose I think इनके साथ प्लेट का इशू है। So this horizontal movement means you are moving along x-axis, and this vertical movement is a movement along y-axis. And each point on that plane R2 means R cross R, इसमें से हम एक को x एक्सिस कह रहे हैं और दूसरे को y एक्सिस कह रहे हैं। इसमें हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कहते हैं that is an ordered pair, let's say x, y. So there are 4 quadrants, you know that. Let's say I have a xy plane. This is your y-axis. This is your x-axis. So this one is your first quadrant, second quadrant, third one, and this is a fourth quadrant. So the sign of x, the value of x and y in first quadrant are positive. The both coordinates of the ordered pair are positive in first quadrant. The first coordinate of the ordered pair is negative in second quadrant. Second one is same.
And in third, that is basically the opposite of the first quadrant. So that must be negative because this is completely positive. These are opposite and these are opposite. Just like opposite vectors. There are 4 quadrants in R2 plane. You can see. And you can draw any point on that plane just by moving along x-axis and y-axis. Let's suppose I have to draw a point in R2. That point is 3, 2. So it means the 3 units along x-axis and 2 units along y-axis. So let's suppose I'm moving along x-axis 3 unit, and then I have to move 2 units along y-axis. You can easily draw that point. You have to draw a line or line segment parallel to y-axis 2 units, and then you have to draw a parallel line to x-axis 3 units. The intersection of the 2 lines is that point basically. Just like I have to draw a line parallel to x-axis from that point, that unit. There are 2 units are given, and there are 3 units are given. So you have to draw a line from that parallel to y-axis. So the intersection of these 2 lines is basically that point. So what do you mean by the R2 plane? This is the rectangular coordinate system that allows the representation of algebraic equations as graph, measurement of distances and slopes, study of geometric figures analytically, and that forms the concept of analytic geometry. So where we can draw pictures and pictures of circles, cylinders, conic sections. So that R2 plane is basically the arithmetic of analytic geometry. After that, जब हमें पता चल गया what do you mean by the R2 plane, तो अब हम आ जाएंगे distances between 2 points, the midpoint formula. So the basic things are these. Let's suppose I have a distance formula. I want to find the distance between 2 points in R2 plane. Let's say ये हमारे पास एक गिवन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल x1 y1, और सेकंड गिवन पॉइंट हमारे पास ये है x2 y2. तो हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चाहिए. देन so first we have to mark the distance along x-axis. This one is our x1 point, and this one is our x2 point. So the difference between x1 and x2 is that small delta x change. This one is the horizontal change, or the change in x, or you can say the distance from x1 to x2. And then this one is y1. And this one is y2. The y coordinate represents the distance along y-axis. So this delta y represents the change along y-axis, or the distance along y-axis. जितना पार्टिकल ने y-axis के अकॉर्डिंगली मूवमेंट की है, that's delta y. So by using the Pythagoras theorem, यहाँ पे तमाम चीजें मेंशन की गई हैं. You can see
delta x is this one and delta y is this one. And we know that Pythagoras theorem said that the square hypotenuse is equal to the square of base plus perpendicular side. So according to the theorem, we can easily derive the distance between 2 points, means A and B. This is the B point, this one is the A point, and that is equal to this one. So now we can use this formula to find the distance between any 2 points on two-dimensional plane. After that, you can easily find out the midpoint formula. If there are 2 points and the third one is the midpoint between A and B, then each coordinate must be the midpoint, like this. X must be x1 plus x2 and y must be y1 plus y2. So then central point M must be equal to this. This one is the example. Let's say a company has a distribution center. अच्छा, अटेंडेंस का टाइम और बेटा बताना. A company has a distribution center at 3,5 location. That this one is the location. A company has a distribution center. The company wants to open a new retail store such that it is at most 4 kilometers away from the distribution center. और कंपनी जो है वो एक न्यू रिटेल स्टोर जो है ओपन करना चाहती है, वही सेम कंपनी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3,5 पॉइंट पे है, जिसकी लोकेशन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. एंड और एक अलग से जो रिटेल स्टोर है वो ओपन करना चाहिए, लेकिन दैट मस्ट बी एट मोस्ट 4 किलोमीटर अवे. So according to the given situation, there are two cases. One is represent this requirement mathematically. सबसे पहले तो आप ये जो आपको सिचुएशन बताई जा रही है कि एक कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एट लोकेशन 3,5 है और वही सेम कंपनी जो है एक रिटेल स्टोर ओपन करना चाहती है, लेकिन एट मोस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें एज एन इक्वालिटी. सेकंड जो है डिटरमाइन द रीजन ऑफ पॉसिबल लोकेशंस ऑफ द न्यू स्टोर. और जो कंपनी न्यू स्टोर खोलना चाहती है, जो न्यू रिटेल स्टोर ओपन करना चाहती है एट मोस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, उसके रीजन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रीजन, द पॉसिबल रीजंस जो है वो भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, डिटरमाइन करें. तो लेट्स गिवन, लेट्स से हमारे पास सेंटर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, लेट्स से वो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं एट दिस पॉइंट. यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनका बना हुआ है, ठीक है. और कोई दूसरी पॉइंट जो है हम लेट्स से वो कहते हैं कि भाई दिस वन इज अ एक्स कम वाई पॉइंट. तो देयर आर टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हमें मिल गई, दूसरी ये पॉइंट. तो हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट, और डिस्टेंस जो आना चाहिए वो हमारा वो क्या आना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 किलोमीटर. जो वो हमारे पास सिचुएशन में गिवन है, गिवन प्रॉब्लम में जो है वो बताया गया है कि जो सेंटर है वो एट मोस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे ना हो. तो अकॉर्डिंग टू दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वन, और जो हमें सिचुएशन बताई गई है, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन द स्टोर मस्ट बी एट मोस्ट 4 किलोमीटर अवे. तो डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4. सो इट मींस जो फर्स्ट सिचुएशन है कि रिप्रेजेंट दैट सिचुएशन एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट.
तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे आ रही है इनइक्वलिटी। अब उसके बाद हमें बताना है कि भाई जो रीजन है, पॉसिबल रीजन कौन सा होगा उस न्यू स्टोर के लिए। सो दिस वन इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर विथ रेडियस, radius is 2. This is basically the radius of सर statement. आप अटेंडेंस लेना आपने बोला था 10 बजे याद दिला देना। जी सर आप अटेंडेंस ले लें, आपने बोला था 10 बजे याद दिला देना। ओके सर अभी 2 मिनट है। नहीं सर आप ले लें। ओके बेटा, वेट करें। अच्छा अभी अभी एक ऊपर भाग रहा डिपार्टमेंट, अच्छा अभी एमटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं पहले उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है, उसके बाद फिर आईएमटी वालों की। ठीक है सर। तो मैं ओके रोल सर। नंबर आउट करता रहूंगा, आप जो ये साथ ओके सर। हेलो। 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 बाकी स्टूडेंट्स अपने माइंड जो है वो म्यूट रखें। ओके सर। सर बज गए 10, ले लें अब। बेटा अपनी माइक ऑफ रखें। जीरो वन एम्प्टी, ओनली एम्प्टी स्टूडेंट्स। जीरो प्रेजेंट वन, सर। जीरो थ्री कामिल खान, जीरो थ्री, जीरो थ्री इज एब्सेंट, जीरो फोर, प्रेजेंट। जीरो फाइव। सर 03 क्लास में प्रेजेंट है, उनके शायद नेट इशू आ रहा है, इस वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, एमटी के सीआर कौन है? गानिया। Rania. यस सर। एमटी डिपार्टमेंट के सीआर कौन है? यस सर। व्हाट्स योर रोल नंबर? 049 39। 49। हाँ जीरो फोर। अच्छा आप इन्फॉर्म करके जाएंगे कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, ठीक है। अगर किसी के साथ नेट का इशू है तो वो आप इन्फॉर्म करेंगे। 49 जो है। लगा दीजिएगा प्रेजेंट, मैं हूँ क्लास में। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कुछ, चलिए बंद कर देते हैं। हाँ जीरो फाइव, Present. जीरो सेवन, प्रेजेंट सर। जीरो नाइन, प्रेजेंट सर। डबल वन, डबल वन, प्रेजेंट सर। वन टू, प्रेजेंट सर। वन थ्री, प्रेजेंट सर। वन फोर, वन फोर, फोर नाइन, वन फोर इज एब्सेंट, यस सर। वन फाइव, प्रेजेंट सर।
16, Present, sir. 17, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 21, double two, Present. 23, Present. 23, Present. 23 is Mohammad Mir Khan. Yes, sir. Viru. Raise your hand, Mohammad Mir Khan. Okay. 24, Present. 25, 25, 9, 25 is absent. Yes, sir. 26, Present. 27, Present. 28, Present. 29, Present. 30, Present. 31, Present. 31, raise your hand, beta. Hello, 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 hello. Hello, 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 31, raise hello, your hand. hello, hello, That is the Mansoor. Mansoor, आप roll number 31 hello. नहीं है बेटा? 37. Sir, I 31 is absent. am not sure. सर वो क्लास में है, उनका नेट इश्यू चल रहा है। अबे ठीक है बस, अभी Okay. हेलो 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 32, हेलो हेलो 32 present, sir. 33, Present. 35, Present, sir. 37, Present. 38, 38, 38 is absent. No, sir, उनका नेट इश्यू है। Net issue है. नेट इश्यू। क्लास में प्रेजेंट है वैसे। Right. ठीक है. 9, Present. Present. 40, 40, Present. 41, वॉइस चेंजर पे अभी बोलो। Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43 is absent. 43 is absent. Yes. Yes, 43 is absent. Double 4, Present. 45, Present. 47, Present, sir. 47 is absent. Present. 49, Present. 50, 50, 50 absent. Syed Mustaqim, 9, Yes, sir, absent है। आप कंफर्म कर दीजिए. 51,
Present. 53, Present. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present. 56, Present, sir. 57, 57, 57 is absent. Yes, sir. Roll number 14 present है नेट इशू था 21B. 58, 57 absent है. 58, Present. सर जी बेटा. रोल नंबर 14 अरूज इमरान इनका नेट इशू था सर से नहीं बोल पाएंगे Sir, roll number 21 का भी है issue. ओके बेटा. Roll number 14 and 21. यस सर रोल नंबर 21 जो प्रेजेंट है इमदाद अली शानी और 14 कौन है? अरूज इमरान. अरूज इमरान सबमिट कर दें. अच्छा जो एब्सेंट है वो सुन ले. रोल नंबर्स आपकी क्लास में जो है वो 25 जो है वो एब्सेंट है. ठीक है. 49 ये नोट डाउन कर ले. नेक्स्ट क्लास में फिर आप जस्ट एब्सेंट रोल नंबर्स बताएंगे. 25, 43, 50 एंड 57. अगर इस बीच में कोई जो है वो मीटिंग लीव करके चले जाते हैं तो उनको भी एब्सेंट कर. अच्छा इसके बाद जो है वो IMT डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जी सर. जी सर. जीरो 1, Present, sir. 02. IMT की CM कौन है? यस सर मैं उबैद रोल नंबर अरे आपका? सर. 054 जी 054 सर 54. ठीक है. मोहम्मद उबैद. यस सर रोल नंबर 2 सर एब्सेंट है 02 is absent. यस सर यस सर. 03, Present, sir. 04, present. 06, सर ये इनका ना नेट इशू हो रहा है क्लासेस अटेंड कर रहा था फिर ये नेट okay, इशू हो रहा है 08, 09, 09, मोहम्मद सर अफान खान एब्सेंट है सर 10, Present, sir. 11, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, 16, मोहम्मद हमदान दुरानी. इसका माइक नहीं चल रहा क्लास में. 17 टीम में मौजूद है. जी प्रेजेंट सर 17 हाँ भाई. मोहम्मद उबैद, नहीं सर क्लास में नहीं मोहम्मद हमदान टीम में मौजूद है. नो सर
सर वो क्लास में नहीं है। नहीं, ये मोहम्मद हमदान दुरानी क्लास में नहीं है, नो, यस सर। तो मीन्स ये एब्सेंट है ना। आप बता दें, टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हैं। सर ये माइक ये का है इशू हो रहा है प्रेजेंट मेरे। है सर। और सर ये इसका इसमें किसी हैंड ने रेज बोला हुआ हुआ है, मोहम्मद हमदान। बाकी बात ना करें, सिर्फ बाकी बात ना करें, सिर्फ सीआर बात करें, बाकी बात ना करें। उबैद प्रेजेंट है यार। अच्छा, मतलब ये क्लास में आए लेकिन नेट की वजह से ये अभी नहीं है। सर जी अभी जी नहीं है। सर, हैंड रेज हुआ है भाई उसका। 17 प्रेजेंट सर। 18 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 एब्सेंट है सर। 21 Present, sir. 22 22 2 इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सर ये प्रेजेंट है, अभी आए थे बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट है। 24 Present. 25 26 इनका Present, नेट sir. 27 Present. 29 प्रेजेंट सर। 30 एब्सेंट है सर। 31 एब्सेंट। 32 Present, sir. 33 Present, sir. 34 सर ये अभी ये 34 यस प्रेजेंट है। 35 हेलो Present, sir. हेलो 36 हेलो 36 हेलो Yusuf हेलो एब्सेंट है सर। हेलो 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 is absent। हेलो 37 हेलो Present, sir. हेलो 38 हेलो 38 is हेलो absent। यस सर। हेलो अच्छा, हेलो यूसुफ अभी आया क्या। हेलो 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 नो सर, वो शायद मे बी एमटी का। हेलो 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 मेरे ख्याल में यूसुफ आए हैं। यूसुफ शफीक, ये कौन है। हेलो हाँ, हेलो यूसुफ शफीक कौन हेलो है। हेलो सर ये एमटी का हेलो है। हेलो हेलो नहीं है, ठीक है। सर यूसुफ शफीक IMT का है सर। ठीक है। मोहम्मद अली 37 प्रेजेंट है सर। 38 ये भी सर प्रेजेंट थे, इनका भी नेट इशू चल रहा है, इन्होंने मैसेज किया। 39 प्रेजेंट। 41 देखो 41 एब्सेंट है सर। हेलो 42 हेलो 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 Present, sir. 43 हेलो हेलो प्रेजेंट सर। 45 हेलो 45 हेलो हेलो एब्सेंट है हेलो सर, एस एन एब्सेंट। 46 Present. 47 हेलो 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 47 वन absent। वन एब्सेंट। टू थ्री चेक 48 हेलो हेलो Present, sir. हेलो 49 हेलो हेलो 49 हेलो सर ये भी एब्सेंट है। 50 Present, sir. 51 सर इनका हेलो नेट इशू है हेलो 51 हेलो का। हेलो हेलो Present। हेलो 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 52 सर सर ये वन भी टू प्रेजेंट है। थ्री माइक चेक एब्सेंट है। 52 प्रेजेंट है सर, मुझे पर नेट इशू है, उन्होंने मैसेज किया। 53 सर प्रेजेंट। 54 प्रेजेंट। 55 55 सर सर माइक का प्रेजेंट इशू है है, माइक इन्होंने मैसेज किया, तमजीद है, ये अभी क्लास में थे। 56 हेलो 56 हेलो हेलो एब्सेंट है सर। हेलो हेलो 57
हेलो हेलो 57 हेलो हेलो एब्सेंट हेलो हेलो सर बैठे हैं। सर प्रेजेंट टू प्रेजेंट हेलो हेलो 58 59 सर इनका नेट इशू चल रहा है 59 का, ये मैसेज किया इन्होंने अभी। 60 प्रेजेंट सर। 61 Present, sir. 62 प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट सर। अच्छा ये रोल नंबर जो एब्सेंट है मार्क कर ले 56 एब्सेंट है 49 47 45 41 36 36 सर प्रेजेंट है यूसुफ। 36 प्रेजेंट है यस सर, ये अभी आ गया था, आपने जो बोले थे यूसुफ। 30 20 और 20 भी सर प्रेजेंट है, वली मोहम्मद। 20 प्रेजेंट है यस सर, ये सर आए थे, नेट इशू चल रहा है इनका, वली मोहम्मद है 09 20। 09 02 ठीक है ये रोल नंबर से ये मार्क कर जो एब्सेंट मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया 36 हो गया। ओके सर, थैंक यू। चलो दोनों क्लास की अटेंडेंस लगभग 20 मिनट्स में आगे निकली वेरी गुड सर जी बेटा सर आप पीडीएफ ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके सर। अब आज ही मुझे आई थिंक आपके ग्रुप में ऐड किया गया है ऐसा चले हम आते हैं अपने उस मुझे पे सेंड कर, ग्रुप में सेंड कर दूँ। जी सर रुबैत को सेंड कर दूँ। हेलो हेलो ओके सर, थैंक यू। हेलो 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 ये माइक ऑफ रखें प्लीज हेलो 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 सर क्लास एंड हो गई। हेलो जी बेटा हेलो सर कह हेलो रहे क्लास एंड हो गई। अच्छा मैं सिर्फ मैं- हेलो 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 आवाज आ रही है सर सर आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज क्यों आ रही है मुझे यही मसला है अब आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही ठीक है मैं जस्ट अलो करता हूँ माइक आप जिसको भी बात करनी होगी वो रिएक्शन शो करेगा बाकी आपके सीआर को मैं अलो कर देता हूँ दोनों डिपार्टमेंट के सीआर हाँ भाई 49 एंड 54 मुझे सुन रहा है यस सर। Sir. Good. अब जो भी फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो अपना जो है वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप अपना रेज योर हैंड कर सकते हैं कि भाई आई हैव इश्यू लेकिन वन बाय वन
तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एमटी डिपार्टमेंट से हैं तो उनके सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आईएमटी से हैं तो उनके सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ के चल वेट, मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, दैट इज अब इसके ये सेकंड पार्ट जो था इस एग्जाम्पल का कि हमें रीजन फाइंड आउट करना है। तो रीजन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब है। जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है। मीन्स दैट इज द पॉसिबल रीजन। सो अगर हम इसको स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज निकल के आ जाएगी, दैट इज x-3 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 16। अब अगर हम यहाँ से लेस देन वाली चीज जो है वो हटा दें तो ये हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल नजर आ रही है। इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, विथ रेडियस 4। तो इस हवाले से लेकिन हमें जो सेंटर चाहिए वो एटमॉस 4 किलोमीटर आगे चाहिए फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो आपका जो पॉसिबल न्यू स्टोर ओपन करने का जो पॉसिबल रीजन हो सकता है वो ये सर्किल हो सकता है। इससे बाहर आप स्टोर नहीं खोल सकते। या तो इस सर्किल की बाउंड्री भी आप ओपन कर सकते हैं या तो इस बाउंड्री से इनसाइड। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहा। मैं अब इसको बिठा देता हूँ। ये जो सेंट्रल पॉइंट है और ये आपका एटमोस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, मतलब इस बाउंड्री पॉइंट। इसके अंदरूनी हिस्से में अगर आप स्टोर ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अलो है, इजाजत है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। लेकिन इससे बाहर आप स्टोर ओपन नहीं कर सकते कंपनी के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। You all are, I think, well informed about this. And that slope intercept form is represented as y equal to mx plus b. So m is slope and b is y-intercept. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द सिस्टम लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत जो डिस्कशन की थी दैट वाज रिलेटेड टू अ सिंगल लीनियर इक्वेशन। अब हम जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। A system of linear equation is a collection of two or more linear equations involving a set of variables. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, लेट्स से हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn, मतलब n वेरिएबल्स का मतलब है कि हमारे पास एक n डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा था कि भाई यहाँ पे इसको लेके चलते हैं बोर्ड पे ताकि आपको वो मजीद क्लियर हो जाए। हम कुछ चीजें जो है वो पेपर ड्रा नहीं कर सकते, ना ही कंप्यूटर। कुछ चीजें जो है वो बियॉन्ड रियलिटी, जिसको हम इमेजिनेशन तौर पे ही अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू सम मैथमेटिकल प्रोसीजर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, बोर्ड शो हो रहा है आपके पास बेटा? बोर्ड शो हो रहा है? सर नो, ठीक है, वैसे तो सब व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? हुआ है उसमें। अब हो रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेता है। डाउनलोड हो रहा भी है। 54 मोहम्मद भाई। यस, शो हो रहा है। ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें R1 स्पेस की, R1 मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल स्पेस जिसमें
सिर्फ आपको वन डायमेंशनल मूवमेंट ही नजर आए, राइट। इसमें कोई सेकंड डायमेंशन नहीं है। अगर हम R2 की बात करें तो जो चीजें हम परसीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनल मूवमेंट आ जाती है, जस्ट लाइक हाइट सलाम अलैकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? लेंथ और विड्थ, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ यू कैन से, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ हाइट इन R2, तो जिसको हम प्लेन भी कहते हैं। अगर R3 की बात करें तो हमारे पास दिस इज R3, इसमें लेंथ, लेट्स से दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ एंड दिस वन इज हाइट। तो यहाँ पे आपके पास तीन डायमेंशंस हैं। अब हमारा मसला क्या है कि हम जस्ट थ्री डायमेंशंस तक ही पेपर वर्क कर सकते हैं। इमदाद अली शाहानी के, हाँ भाई इमदाद भाई बताएं, एनी क्वेश्चन? सर बोर्ड आपने रेज योर हैंड के ऑप्शन पे क्लिक किया है? सर बोर्ड शो नहीं हो रहा। अच्छा, देखें थोड़ा ख्याल करें, ऐसी गलतियां ना करें, इंटरप्शन होती है। सो अब R3 तक ही हम चीजों को परसीव कर सकते हैं थ्रू द पेपर वर्क, कंप्यूटर पेपर वर्क के थ्रू, लेकिन कंप्यूटर में हम R3 से भी आगे चीजें मैथमेटिकली, इन रियलिटी नहीं लेकिन मैथमेटिकली। सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्पेस आ जाए R4, फोर डायमेंशनल स्पेस, R5, R1 है, R2 है, R3 है, तो R4 भी होगा, R5 भी होगा, R6 भी होगा। तो इस तरह से ये जो चेन ऑफ स्पेसिस चलती जा रही है, दैट इज अप टू Rn, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो आपकी स्पेस है वो डिफाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। R1 मींस वन वेरिएबल वाली स्पेस भाई। यहाँ पे आप जो भी चीज है, जो भी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू ओनली वन वेरिएबल। R2 में जब आएंगे, दैट इज स्पेस विद टू वेरिएबल्स। R3 में स्पेस विद थ्री वेरिएबल्स। R4 में स्पेस विद फोर वेरिएबल्स। तो इस तरह से आप जब Rn में आएंगे तो देयर आर n वेरिएबल्स, जस्ट लाइक दिस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। Rn में जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास n वेरिएबल्स का सेट आ जाएगा, जस्ट लाइक x1, x2 अप टू xn। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर n वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशंस कितनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि उन वेरिएबल्स को यूज करके कितनी इक्वेशंस बनाना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर m लीनियर इक्वेशंस, मींस के जो ऑब्जर्वर है वो n वेरिएबल्स या n वेरिएबल वाली स्पेस में m इक्वेशंस को फॉर्म क्रिएट करना चाहता है, बनाना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है। तो उसने एक सिस्टम बनाया, लेट्स से दिस इज द सिस्टम 1, जिसमें उसने इस तरह से, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड अप टू इक्वेशन m। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए आई जे। इन तमाम कोएफिशिएंट्स को हम सिर्फ एक कोएफिशिएंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट आई एंड जे।
change when these are numbers, these are the numbers from 1 to m and 1 to n. So इन तमाम कोफिशिएंट्स को हम a i j के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन लिख रहा है द मैट्रिक्स ऑफ a i j तमाम एंट्रीज जो ए आई जे के हिसाब से है, तो हमें इसको ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन डायग्राम, इस ओवरऑल सिस्टम को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस में लिख सकते हैं। और Ax is equal to b. A is a coefficient matrix, A is a linear transformation, and what is that x? X is that space, x is that space. तो x में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? There are n variables. So it means x is that Rn space, जो मैं वहां पे कह रहा था कि nth डायमेंशनल स्पेस जो है हमारे पास यहाँ पे x है, क्योंकि इसमें n वेरिएबल्स है। This x can be one-dimensional space, this x can be two-dimensional space, this x can be three-dimensional space, this can be n-dimensional space. This one is the general formation of system for m equations and n variables. So now we have to understand the basic case of system of linear equation, and that is the system of linear equation in two variables. So let's suppose हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अवेलेबल है और वो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, मतलब n की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। m is 2 मींस नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 है और वेरिएबल्स भी इसमें 2 है। सिचुएशन तो हमारे पास इस तरह का सिस्टम आ जाएगा। तो वो मिला यहाँ पे इसके दरमियान कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ये था इन द एक्स वाई प्लेन, ये दो वेरिएबल्स है तो फिर आपके पास R2 प्लेन ही होगा, सो दैट्स व्हाई लिखा हुआ है कि XY प्लेन। सपोज हमारे पास अगर हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल हो तो उनका सॉल्यूशन सेट किस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन के लिए लिखते हैं। अगर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, इट मींस उसके सॉल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर होगा। दो वेरिएबल है तो ऑर्डर पेयर होगा, थ्री वेरिएबल्स हैं तो मतलब वहां पे ट्रिपलेट होगा, थ्री एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट, थ्री अगर मोर देन फोर है वेरिएबल्स तो आपके पास फोर कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट में, फाइव है फाइव कोऑर्डिनेट होंगे। आप सबको आवाज सर अभी नहीं आ रही आवाज आप। करें? तमजीद, शर्जील नहीं तमजीद, जी शर्जील बेटा बात करें, माइक अलो कर दी गई आपको।
हाँ बेटा, हाँ मैं थोड़ा सा वो गेट खोल गया था, इस वजह से शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अब आ रही है शर्जील, आवाज आ रही है? Okay. कोई क्वेश्चन हो किसी को, पूछ सकते हैं यहाँ तक, अदरवाइज हम आगे मूव करें। सो जो सॉल्यूशन सेट होगा 2x2 सिस्टम का, मतलब दो पॉइंट्स होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अभी तमाम 2x2 के सिस्टम को हम 2x2 के सिस्टम के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन के जो केसेस है उनको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मींस दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, रेड वन और सॉरी ब्लू वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड रेड वन इज द सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें सिर्फ एक पॉइंट होगी, उसमें सिर्फ एक पॉइंट होगी, ये वाली जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सेकंड केस में उठाएं तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस वजह से इनमें इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम थर्ड उठाएं तो दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, रेड वन एंड ब्लू वन। तो मतलब इसमें ये जहां तक ये दोनों लाइनें जाएंगी ओवरलैपिंग लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से, तो हर पॉइंट इनकी सॉल्यूशन सेट के तौर पे काम करेगी। मतलब कि जी बेटा, तो आप कुछ पूछना चाहती हैं? आवाज आ रही है जोबा बेटा? चल, तो ये 2x2 के सिस्टम में जो है वो दो पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन हमें नजर आती है कि या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। एंड देयर कैन बी unique situation means that they intersect at single point, no solution means they are parallel, infinite solution means they are overlapping. Some situations change. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास 2x2 का सिस्टम हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है एलिमिनेशन मेथड का। अब एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करते हैं कि वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल इक्वेशन में सिलेक्ट करेंगे कि भाई
माइंड बनाएंगे कि भाई ये मुझे वेरिएबल एलिमिनेट करना है। लेट सपोज मैं x1 एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो ये सेकेंड स्टेप क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन को कंबाइन करें, इस तरह से कंबाइन करें कि जो हम वेरिएबल अपने माइंड में सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इजीली वो किस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन के उसी सेम वेरिएबल को उसी कोफिशिएंट की तरह कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, या हम मल्टीप्लाई इस पे कोई फर्क या तो आपको यहाँ कंबाइन करना है कि वो वेरिएबल इक्वेशन बनवा इजीली एलिमिनेट हो। अब इसके बाद जो है, आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे, जब सॉल्व करेंगे दोनों को मिला के, तो आपके पास रिजल्ट उसमें वेरिएबल हो देयर इज द यूनिक सॉल्यूशन। अब आपका स्लोप भी चेंज होगा, एडवाइस इंटरसेप्ट भी। अब आप क्या करेंगे भाई, ये जो इक्वेशन है इसको जब आप इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का मतलब कि यू हैव टू ऐड अ सब्जेक्ट इक्वेशंस, तो यहाँ से आपको एक रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी। रिजल्टिंग इक्वेशन इज दिस वन। तो रिजल्टिंग इक्वेशन में आपके पास एक ही वेरिएबल आ रहा है,
एंड देन फाइंड y। अब आप सेकंड वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई क्योंकि रिजल्टिंग इक्वेशन में एक वेरिएबल था। तो अब सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर आप ये जो वैल्यू है ये किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट मिला क्योंकि रिजल्टिंग इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल मिला, तो सॉल्यूशन सेट में हमेशा यूनिक पॉइंट हो, एक ही सिंगल पॉइंट, दैट इज टू कम ऑफ टेस्ट टू। इसमें आपको सिचुएशन इस तरह है, means that is the infinitely many solution 3 according to the method false statement, so there are infinitely many solutions। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रॉब्लम है, let's suppose when people invest money, there are professions such as stockbrokers who may be consulted for advice about the portfolio that best meets an investor's needs। Suppose that an investor has consulted a local investment expert after discussing the investor's objectives, the expert advised that the investor is interested in about the following attributes। एक इन्वेस्टर है, किसी लो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं, भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे एक प्लान जो है वो चाहिए, और मेरे पास जो है ये अमाउंट है, या मैं मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस इन्वेस्ट करूं। तो वो एक्सपर्ट है, उनको जो है एक प्लान दे रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज द टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टाइम ऑफ परचेस, 3 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। there are 3 investments: investment 1, investment 2, investment 3। एक हाँ भाई, एक प्रॉब्लम है जिसमें थोड़ा सा बाहर से साउंड आ रहा, तो इस वजह से मैं खामोश हो गया। तो अब इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है जो कि वो अपना अमाउंट जो है वो एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर के तौर पर इन्वेस्ट करना चाहता है, और एक्सपेक्ट करता है कि मुझे एक अच्छा मुनाफा हो, मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इस वजह से वो एक लोकल या वहीं के कोई किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के साथ या किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ वो उससे एडवाइस लेता है। तो जब वो डिस्कस करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में, जितना भी उनके पास अमाउंट है या जो भी इन्वेस्टर की प्लानिंग है जिस भी हिसाब से, तो वो 3 एट्रीब्यूट्स जो है वो उनके सामने आते हैं एक्सपर्ट के सामने। फर्स्ट एट्रीब्यूट ये आता है कि द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट द टाइम ऑफ परचेस इज $50,000। The expected annual growth in market value is 12%. The average risk factor is 10%.
एवरेज रिस्क फैक्टर जो है वो 10% है। 3 इन्वेस्टमेंट alternatives have been identified. The expected annual growth rates and risk factors for these investments are shown in table. यहाँ पे जो आपके पास एनुअल ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ और उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जो है वो इस टेबल में आपको अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट बताए गए हैं। इन्वेस्टमेंट 1 में जो आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ है वो 16% है। 1 मिनट Who's that? इन्वेस्टमेंट 1 जो है दैट इज उसमें जो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ दैट इज 16% और एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो 12% है। इन्वेस्टमेंट 2 में एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ जो है वो 8% है और एक्सपेक्टेड रिस्क जो है दैट इज 9%। इन्वेस्टमेंट 3 12% एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ एंड 8% एक्सपेक्टेड रिस्क according to the investment plans. So let's suppose you can solve you we just have to find the for example these 3 investments according to the given portfolio. Let's suppose x1 is amount invested in investment 1, this one is amount invested in investment 2 and x3 is amount invested in investment 3. So total investment कितना होगी हमारे पास that is 50,000. We know that. So it means कि x1 plus x2 plus x3 must be equal to $50,000 because that is the total investment of the investor. And how much the total annual expected growth कितना होगा? इन्वेस्टमेंट 1 में हमारे पास 60% है, इन्वेस्टमेंट 2 में 8% है और इन्वेस्टमेंट 3 में 12% है। तो टोटल एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी होगी हमारे पास? So the 16% of x1 plus 8% of x2 and the 12% of the x3 and the total annual growth is given, that's 12% of the total investment. So that is 0.12 into 50,000. That is 6,000. This is our second equation. This is our first equation. You can see. And the total risk factor you can calculate. Annually total risk factor जो है हमारे पास वो क्या आएगा? That is 0.12 x1, which is 12% of x1, 9% of x2, and 8% of x3. So that is equal to 10. The given risk factor is 10%. So the 10% of 5,000. So हमारे पास 3 equations बन के आ गए, 3 models आ गए. One is the risk factor model, second one is the annual growth, and third one is the total investment. हम तीनों इक्वेशंस को यूज करके यूटिलाइज करके इन्वेस्टमेंट 1 मींस x1 x2 x3 फाइंड आउट करते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम यूटिलाइज करके बाय यूजिंग एनी मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मींस जहां पे हम एक्स मालूम करके सॉल्व करते हैं, तो हम इन मेथड से गुजरेंगे। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा दैट इज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो $12,500 होगी। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो $12,500 और जो थर्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो 25,000। तो अगर इसी प्लान के तौर पे अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट 1 में जो वो $12,500 उसको इन्वेस्ट करने चाहिए और सेकंड इन्वेस्टमेंट में उसको सेम अमाउंट एंड थर्ड में उसको अमाउंट जो है वो बढ़ाना चाहिए 25,000 तक। एनी क्वेश्चन? आई थिंक टाइम्स अप। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर।
अब ये कौन है मोहम्मद अफान? मेरी अटेंडेंस नहीं लगी तो बेटा आप क्लास में नहीं होंगे ना? नहीं लगी क्या मतलब? हाँ तो अभी आए होंगे।